In last lecture, we have to discuss about the Newton's forward difference interpolation, also Newton's backward difference interpolation. Okay, this is used for finding the polynomial in given intervals. Okay, now today we will discuss the numerical integration. Numerical integration for finding इंटीग्रेशन. हाँ, क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट टू फाइंड एरिया अंडर द गिवन कर्व. आपके पास एक एरिया है, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन. ओके, इफ गिवन एरिया इज बाउंडेड, अपर एंड लोअर लिमिट है, एट दैट टाइम वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन. ओके, तो हियर इन दिस टॉपिक, ये टॉपिक खूब डीप में है, बट हियर टुडे वी विल डिस्कस ओनली फ्यू पार्ट्स फ्रॉम दैट टॉपिक. ओके, फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. So for finding numerical integration, there are three basic rules, and first rule is the trapezoidal rule. First rule क्या है? First is trapezoidal rule. उसका फार्मूला है डायरेक्टली. Formula is x0 to xn y into dx is equal to h by 2 in bracket y0 plus yn. y0 is initial term and yn is last term, plus 2 times y1 y2 dot plus yn minus 1. ओके, दिस इज फार्मूला. तो देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है यहाँ पे? The trapezoidal rule, इंटीग्रेशन 0 to xn, इंटीग्रेशन 0 to xn और x0 to xn भी क्या तो बिचरेगा, x0 to xn y into dx is equal to h by 2 y0 plus yn plus 2 times y1 y2 dot yn minus 1. How to recall this term? यहाँ पे क्या है, h by 2 y0 फर्स्ट टर्म कौन सी है, y0. फर्स्ट टर्म कौन सी है, y0. सेकंड टर्म क्या जाएगी, y1. थर्ड टर्म क्या जाएगी, y2. फोर्थ टर्म क्या जाएगी, y3. ओके, तो क्या है, y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स मिडल टर्म. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स मिडल टर्म्स. ओके, दिस इज फार्मूला फॉर द ट्रापेजोइडल रूल. एंड हियर h is यहाँ पे h क्या है, h इज इक्वल टू xn माइनस x0 डिवाइड बाई n. n इज सब इंटरवल्स. n क्या है, n is sub intervals. Okay, n is sub intervals. Now second is Simpson's 1/3 rule. Simpson's 1/3 rule. This is also important for finding integration. Okay, for finding integration on the sub intervals. तो वो क्या है, x0 to xn y into dx is equal to h by 3 in bracket. यहाँ पे क्या जाएगा, h by 3 in bracket y0 plus yn. y0 plus yn क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ओके, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 टाइम्स y1 plus y3 plus y5 plus dot y1 plus y3 plus y5 plus dot plus yn minus 1. और क्या जाएगा, ऑल इवन. करेक्ट, ऑल ऑड प्लस 2 टाइम्स इवन प्लस 2 टाइम्स इन ब्रैकेट y2 y4 y6 प्लस dot प्लस yn minus 2. दिस इज सिम्पसन्स 1/3 रूल. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, h by 3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 4 टाइम्स all odd terms plus 2 times all even terms. Okay, the next 3 Simpson's 3/8 rule. This is also important for finding numerical integration. and वो क्या आता है, इंटीग्रेशन x0 to xn y into dx is equal to 3h divided by 8. This is 3h divided by 8 in bracket
y0 plus yn, y0 plus yn plus 2 times y3 plus y6 plus yn डॉट डॉट डॉट. ओके, यहाँ पे क्या है, थ्री से मल्टीपल जो टर्म है वो प्लस 3 टाइम्स रिमेनिंग टर्म y1 प्लस y2 प्लस y3 यहाँ पे आ गया. अभी बाकी क्या है, y4 प्लस y5 प्लस डॉट 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 डॉट. ओके, तो क्या है, Simpson's third rule for finding the numerical integration x into x0 to xn y into dx is equal to 3h divided by 8 y0 plus yn, फर्स्ट ब्रैकेट y0 plus yn. देखो ईच एंड एवरी जगह y0 plus yn, प्रत्येक जगह क्या है, y0 plus yn, y0 plus yn. ओके, फर्स्ट टर्म. देन प्लस 2 टाइम्स y3 y6 y9 जस्ट लाइक दिस, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स रिमेनिंग, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स. ओके, देन 1 थर्ड में क्या है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म प्लस 4 टाइम्स ऑड 1 3 5 प्लस 2 टाइम्स इवन 2 4 6. ओके, जस्ट लाइक दिस. ओके, अभी देखो these are the formulas for finding integration. Okay, these are the formulas for finding integration. Now we will discuss some example on that topic. Example first, evaluate integration 0 to 3 dx divided by 1 plus x with 7 coordinate, ordinates by using Simpson's 3/8 rule. Now look on the board. यहाँ पे क्या करना है आपको, we have to find answer of this. We have to find answer of this. Integration 0 to 3 dx upon 1 plus x. Okay, यहाँ पे डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन लिया तो भी आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट दिस इज बेसिक मेथड, दिस इज फर्स्ट मेथड हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन. ओके, समेशन बाय यूजिंग समेशन. तो देखो we have to find answer of this. तो फर्स्ट हियर इन आंसर हियर वैल्यू ऑफ x0 क्या दिया है 0, कॉमा वैल्यू ऑफ xn क्या दिया है 3. करेक्ट, xn क्या दिया है 3. आल्सो वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 1/1 plus x. This is y, correct, 1/1 plus x. This is value of y into dx, value of y 1/1 plus x. Also the value of n क्या है, number of ordinates. यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 ordinates. टोटल पार्ट कितने हो रहे हैं 7, बट यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से किया है 0 से. करेक्ट ना, टोटल 7 पार्ट है तो सब इंटरवल कितने होना चाहिए n, दिस इज 6, एक से कम. रिकॉल दिस, यहाँ पे 7 बोल दिया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 6, 7 बोल दिया तो क्या आना चाहिए 6. ओके, देन वी हैव टू फाइंड h. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ h. तो h क्या जाएगा, h इज इक्वल टू xn माइनस x0 डिवाइड बाई n. वी गेट h एज 3 माइनस 0 डिवाइड बाई n कितना है 6, तो h इज 1/2 एंड दिस इज 0.5. h क्या मिल गया 0.5. h इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, h इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. h से हम स्टार्ट कर सकते हैं h. ओके, दिस इज योर h. ओके, दिस इज योर h. now we have to start this x from this h. हमें इंक्रीमेंट किसी करना है, we have to add it 0.5 in every x. ओके, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, फर्स्ट x and y. ध्यान दीजिए, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये टेबल आपको समझ में आ गया तो बस पूरा क्वेश्चन समझ में आता है. यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक वैल्यू ऑफ x0, दिस इज x0. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू 3. ओके, देन आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ y, दिस इज योर फंक्शन n. ओके, y, देन n सब इंटरवल्स. यहाँ पे 7 है तो क्या जाएगा
6, then h xn minus x0 divided by n. Okay, we get h as 0.5. अभी देखो h का रोल क्या है, h is very very important role for finding accurate answer. h is very very important. This is first method, this is basic method for finding integration. Okay, यहाँ पे एरर आ सकता है, डेफिनेटली एरर. अभी देखो h कहाँ से स्टार्ट है, h is starting from 0, x is starting from 0. वो क्या बोल रहा है, add और इंक्रीमेंट x as 0.5. h क्या है, इंक्रीमेंट इन x, दिस इज योर h. यहाँ पे क्या जाएगा 0.5. देन ऐड 0.5 क्या मिलेगा 1. देन ऐड 0.5 क्या मिलेगा 1.5. देन ऐड 0.5 क्या मिलेगा 2. देन ऐड 0.5 क्या मिलेगा 2.5. देन ऐड 0.5 क्या मिलेगा 3. देन ऐड 0.5 क्या मिलेगा 3.5. बट हमें कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है. ये सबको समझ में आता है. x starting from 0 and goes to 3. x starting from 0 and goes to 3. h क्या है, h is increment in x. h is increment in x. Okay, so we get value of x. This is your first target, value of x. अभी x आपके पास है, यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट 0.5 है. 1 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3. अभी देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट हमने 0.25 किया, उसका हाफ 0.25 इंक्रीमेंट किया, तो हमें क्या मिलेगा, मोर एक्यूरेट आंसर. जितने भी इंटरवल है ना, इंटरवल नंबर ऑफ इंटरवल्स आर मैक्सिमम, देन एक्यूरेसी डेफिनेटली इंक्रीजेस. ओके, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y. अभी x आपके पास है, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y. पुट x इज इक्वल टू 0 इन दैट y के, हाँ यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो, y क्या मिलेगा 1. देन पुट x इज इक्वल टू 0.5. पुट x, हाँ कैल्सी सबके पास होना चाहिए यहाँ पे, विदाउट कैल्सी ये हम फाइंड नहीं कर सकते. ओके, कैल्सी और कैलकुलेटर. पुट x है 0.5, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1.5. 1 डिवाइड बाय 1.5, तो क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाय 1.5. 1 डिवाइड बाय 1.5 इज 0.6667. बाय यूजिंग कैल्सी आंसर लिखो. देन x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू क्या है अभी 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस 1, दिस इज 2. 1/2, 1/2 क्या जाएगा 0.5. देन x इज इक्वल टू 1.5. 1.5 प्लस 1 क्या जाएगा 2.5. 1 डिवाइड बाई 2.5, तो वो क्या मिलेगा 0.4. देन x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस 2. 1 प्लस 2 इज 3. 1 प्लस 2 इज 3, तो 1/6. 1/3. 1/3 क्या जाएगा 1/3 इज 0.333. 0.3333 बाय यूजिंग कैल्सी आपको मिलेगा वो. देन पुट x इज इक्वल टू 2.5. पुट x इज इक्वल टू 2.5. 2.5 प्लस 1 क्या मिलेगा 3.5. 1 डिवाइड बाय 3.5 कैल्सी में निकालो. 1 डिवाइड बाय 3.5 इज 0.2857. 0.2857, दिस इज वैल्यू. ओके, एंड लास्ट रिप्लेस x एज 3, तो 1 प्लस 3 क्या जाएगा 4. 1 डिवाइड बाय 4. 1 डिवाइड बाय 4 इज 0.25. दिस इज योर 0.25. these are the values. ओके, these are the values. उसमें कोई डाउट है, यहाँ तक क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट दिस इज योर x0, दिस इज योर xn. x0 xn हमने निकाला. देन दिस इज योर y क्या है 1/1 प्लस x. नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने हैं 6. ओके, देन फाइंड h इज इक्वल टू xn माइनस x0 डिवाइड बाई n, तो h क्या मिल गया 0.5. अभी देखो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू 3. कहाँ से स्टार्ट करना है 0 से, एंड कहाँ तक जाना है 3. ओके, 3 तक. तो x क्या जाएगा, फर्स्ट x की एंट्री क्या जाएगी x0 0, y0 1. ओके, दिस इज योर x0 0 y0 1. ओके, देन दिस इज योर x1, दिस इज योर x2, दिस इज योर x3, दिस इज योर x4, दिस इज योर x5, दिस इज योर x6. तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स n कितना हो गया 6. समझ में आता है. एंड ऑर्डिनेट्स कितने हो गए 7. 7 कैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑर्डिनेट्स कितने हो गए 7, एंड नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने हो गए 6. ओके, तो वी गेट दिस. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज योर x0, और यहाँ पे भी लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई विल ऐड 1 और आई विल ऐड हियर 1. तो क्या जाएगा, दिस इज 0 1 2 3 4
5 and 6, 5 and 6, उसे कैसे बोल दिया तो चलेगा x0 इज 0, x1 इज 0.5, x2 1, x3 1.5, x4 2, then x5 2.5 and x6 3. ओके, देन यहाँ पे भी y0 क्या है 1, y1 देन y2 ये मिलेगा, देन y3 ये मिलेगा, y4 ये मिलेगा, y5 एंड लास्ट y6. ओके, फर्स्ट प्रिपेयर दिस टेबल, जो दिया है वो लिखना है फर्स्ट आपको. फाइंड वैल्यू ऑफ h, फ्रॉम h वी हैव टू कंस्ट्रक्ट टेबल. देन आफ्टर दैट बाय यूजिंग सिम्पसन्स थ्री-एट रूल. अभी कौन सा भी रूल है कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा भी आने दो, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन्स थ्री-एट रूल. ओके, आंसर हमें सेम ही मिलने वाला है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है. ओके, सबका आंसर सेम. और बाय यूजिंग डायरेक्ट इंटीग्रेशन वी गेट सेम आंसर, थोड़ी सी एरर आ सकती है. ओके, तो नाउ बाय यूजिंग सिम्पसन्स थ्री-एट रूल, by Simpson's three-eighth rule, क्या जाएगा आंसर? दिस इज योर रूल. इंटीग्रेशन 0 to 3 1/1 plus x into dx इज इक्वल टू, क्या है उसका फॉर्मूला थ्री-एथ रूल का? दिस इज योर थ्री-एथ रूल, 3h डिवाइड बाई 8, 3h डिवाइड बाई 8 इन ब्रैकेट y0 प्लस yn, yn कितना है यहाँ पे 6, n क्या है 6, y6 तो क्या जाएगा y6. ओके, प्लस 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 तो क्या मिलेगा y3, 2 टाइम्स y3 प्लस 3 टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स. अभी कौन सी बाकी है? y1 बाकी है, y2 बाकी है, y4 बाकी है. y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5. ओके, दिस इज योर सिम्पसन्स. हाँ, यहाँ पे देखो y0 आ गया, y6 आ गया. ओके, 3 आ गया, 1 2 4 5 ऑल द टर्म्स यहाँ पे जितने हैं ऑल द टर्म्स यहाँ पे आ गए. देन पुट ऑल दिस वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ y0 की वैल्यू क्या है 0, पुट वैल्यू ऑफ yn की वैल्यू क्या है y6 दैट इज 0.25. पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला एंड कैलकुलेट. यहाँ पे भी कैल्सी आपके पास मस्ट है, तो आई विल राइट वैल्यूज 3 इंटू h क्या है 0.5, h is 0.5 डिवाइड बाई 8 इन ब्रैकेट y0 प्लस y6. y0 क्या है? y0 is 0, y0 is 1 प्लस y6 क्या है 0.25 प्लस 2 टाइम्स y3 का है y3, यहाँ पे 3 देखना है, y के टेबल में 0.4 प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5. y1 के टेबल में y की वैल्यू 0.6667 आई विल राइट हियर प्लस y2 की टेबल में y की वैल्यू 0.5 प्लस y4 की वैल्यू 4 की टेबल में y4 क्या है 0.4 टाइम्स 3 प्लस लास्ट क्या जाएगा y5 की वैल्यू y5 0.2857. दिस इज योर all the values. These are the values. Okay, these are the values. Now put all these values in calci, we get answer directly. Here I will write answer directly. Answer is 1.3, answer is 1.3888. This is your answer. Okay, this is your answer. By using calci से फाइंड कर दो, we get this calculation. Okay, क्या करना है? सबकी एडिशन करना है बस, बाकी कुछ नहीं. So this is your answer of first question, 0 to 3 1/1 plus x into dx. Okay, here we have to solve this question by using Simpson's 3/8 rule. यहाँ पे कौन सा भी आ गया? by using trapezoidal आने दो, by using 1/3 आने दो और by using 3/8 आने दो. This first process is same, this table is also same. यहाँ पे mention करना है by using which rule, then put all this value, we get answer. Okay, now this is your first example.
Also we will discuss one more example on the topic. Example number second. Example number second, solve. Example number second. तो सेकंड एग्जांपल क्या है देखो, यूज सिम्पसन्स 1/3 रूल, यूज यहां पे क्या है 1/3 है, यूज सिम्पसन्स 1/3 रूल टू ऑब्टेन इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin x upon x into dx by dividing interval by dividing the interval into 5 parts, the interval into 5 parts, ओके। तो देखो यहाँ पे भी सेम है, सेम क्वेश्चन है। हियर वी हैव टू यूज सिम्पसन्स 1/3 रूल, ओके। तो क्या जाएगा, गिवन x0 क्या है 0, xn क्या है, हमें अभी कहाँ से कहाँ तक जाना है 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 क्या हमें क्या करना है 5 पार्ट्स में उसका कन्वर्जन करना है, ओके। तो x0 क्या है 0, xn क्या है pi by 2, ओके। देन y क्या है y sin x upon x, दिस इज योर y sin x upon x, ओके। देन h क्या जाएगा, h इज इक्वल टू xn माइनस x0 डिवाइड बाई n, तो xn क्या है pi by 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 पार्ट्स, 5 बोलो तो डिवाइड में क्या जाएगा 4, डिवाइड में क्या जाएगा 4, दिस इज pi by 8, okay, this is your h. Now table, construct the table. तो टेबल क्या जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ओके, x एंड y, अभी देखो x स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से है, x स्टार्टिंग फ्रॉम 0, हमें ऐड क्या करना है उसमें, वी हैव टू एड 8 pi by 8, तो 0 plus pi by 8, 0 plus pi by 8 क्या जाएगा, यहाँ पे जो आता है वो क्या आता है x plus h, तो क्या जाएगा 0 plus pi by 8, दिस इज pi by 8। देन नेक्स्ट pi by 8 plus pi by 8, pi by 8 plus pi by 8 क्या मिलेगा 2 pi by 8, दिस इज pi by 4। देन नेक्स्ट pi by 8 plus pi by 4, pi by 8 plus pi by 4 क्या मिलेगा 3 pi डिवाइड बाय 4। एंड नेक्स्ट 3 pi डिवाइड बाय 4 प्लस pi by 8, 3 pi डिवाइड बाय 4 प्लस pi by 8, तो क्या जाएगा pi by 2, वो क्या जाएगा pi by 2, ओके। वी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू 4, ओके। तो कितने आ गए 1 2 3 4 5 पार्ट्स आ गए, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0, तो y का लिमिट क्या जाएगा sin x upon x, द लिमिट ऑफ sin x upon x, उसका लिमिट क्या है, द लिमिट ऑफ sin x upon x, लिमिट ऑफ sin x upon x, आंसर इज 1, आंसर इज 1। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0, उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे 0 by 0 नहीं लिखने का, इन लिमिटिंग केस लिमिट ऑफ sin x upon x, आंसर क्या जाएगा 1, ओके 1। देन पुट x इज इक्वल टू pi by 8, अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू pi by 8 पुट कर दो, क्या जाएगा sin pi by 8 डिवाइड बाय pi by 8, ओके। So I will write value of this directly. This is 0.9744. 0.9744. Now put x is equal to pi by 4. Put x is equal to pi by 4 here. Sin pi by 4 divided by pi by 4. Sin pi by 4. This is 1 by root 2 divided by pi by 4. We get 0.9003. Right value up to 4 digits. कोई problem नहीं है. Then put x is equal to 3 pi by 4. Put x is equal to 3 pi by 4 here. So we get 0.7842. 0.7842. Now put x is equal to pi by 2. x is equal to pi by 2. तो वो क्या जाएगा, sin pi by 2 is 1, डिवाइड में pi by 2 है, वो क्या जाएगा 2 by pi, 2 by pi, and this is 0.7842.
6366, 0.6366. Okay, these are the values. Now we will focus on the given point. यहाँ पे क्या है? This is common for 3. बायोजे फर्स्ट सेकंड थर्ड वही आपका कॉमन पार्ट आएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now we will here use the Simpson's 1/3 rule. Simpson's 1/3 rule. यहाँ पे आपने एक कॉलम एक्स्ट्रा भी किया, जो लास्ट एग्जांपल में किया है उस टाइप का भी किया तो भी चलेगा, तो आपको ज़्यादा यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा. दिस इज 0 1 2 3 4. तो उसका मीनिंग क्या है? y0 इज 1, y1 इज दिस, y2 दिस, y3 ये वैल्यू एंड y4 ये वैल्यू. सेम x0 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू एंड x4 की वैल्यू. नाउ बाय यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल, by Simpson's 1/3 rule, write formula here, integration 0 to pi by 2 sin x upon x into dx is equal to क्या है फार्मूला? h/3. यहाँ पे फार्मूला है h/3 in bracket y0 plus yn, in bracket y0 plus yn plus यहाँ पे क्या है y0 plus yn plus 4 times odd number of terms, 4 times y1 plus y2 plus y1 plus y3 plus y5 है क्या? उसमें नहीं है तो लिखने की जरूरी नहीं, ओनली दिस 2 टर्म्स प्लस 2 times odd terms प्लस 2 times odd terms में कौन थे? y2 एंड y4, y2 प्लस y2 भी नहीं, हाँ y4 यहाँ पे जाएंगे, yn क्या जाएगा? yn क्या जाएगा? 4. 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 times y2, इवन में क्या मिलेगा? 2 times y2, 2 times y2, 2 times y2. ओके, दिस इज फार्मूला. ओके, दिस इज योर फार्मूला. ओके, फार्मूला लिखना है, फर्स्ट राइट फार्मूला देन राइट वैल्यू. यहाँ पे पहले फार्मूला लिख दिया देन वैल्यू लिख दी तो भी चलेगा. देन सॉल्व दिस. दिस इज h, हियर h इज pi by 8, 8 into 3 in bracket y0 क्या है? 1 plus y4 is y4 is 0.6366 plus 4 times y1 plus y3, y1 1 की 1, y में देखो 0.9744 प्लस y3 में देखो 0.7842 प्लस 2 times y2 प्लस 2 times y2 की वैल्यू क्या है? y2 0.9003. दिस इज वैल्यू ऑफ y2. नाउ फाइंड दिस आंसर बाय यूजिंग कैल्ची. कैल्ची में सब वैल्यू पुट कर दो, खाली एडिशन है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन में नहीं, एडिशन है. फाइंड दिस आंसर एंड वी गेट आंसर इज 1.3707. 1.3707. दिस इज योर आंसर. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है? बाय यूजिंग दिस 3 रूल्स वी हैव टू फाइंड आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? अपर एंड लोअर लिमिट, देन ऑल्सो पार्ट्स. दिस 2 थिंग्स आर गिवन एट द टाइम वी हैव टू फाइंड आंसर. दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. ओके.